Class 9, we are continuing the lesson Physical Features of India. We'll study the Peninsular Plateau. We have already studied mountains and plains, and now we are going to study about the Peninsular Plateau. See, Peninsular Plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land. It is one of the oldest land masses. It is broad and shallow. It has broad and shallow valleys and rounded hills. Shallow valleys मतलब बहुत गहरी घाटियाँ नहीं हैं, शैलो हैं. और राउंडेड हिल्स मतलब बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ नहीं है पर पहाड़ियाँ हैं. इसमें इस प्लेटो में दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन्स. नंबर 1 सेंट्रल हाईलैंड्स and number 2 Deccan Plateau. सेंट्रल हाईलैंड वाले एरिया में इन सेंट्रल हाईलैंड्स कम्स मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, बाघेलखंड and Chota Nagpur Plateau to the is its eastward extension. Then Peninsular Plateau. The Deccan Plateau is triangular landmass. नर्मदा रिवर के साउथ में है ये. सतपुरा रेंज ऊपर है इसकी, ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, और महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज ईस्टर्न एक्सटेंशंस हैं. Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. Then next topic we will see the Eastern and Western Ghats. Eastern and Western Ghats, we'll go back to the map and again I'll show it to you. Eastern and Western Ghats कहाँ पे आते हैं. Once again I'm going to show you with the help of this map. These are the mountain ranges. This is the Great Indian Desert. This is the Central Highland and this is Deccan Plateau. While these are Western Ghats and these are Eastern Ghats. You can clearly see that Western Ghats is parallel to the coastline. This is our coastline. It is parallel to the coastline and very near to the coastline. While the Eastern Ghats, these lie away from the coastline. There are many rivers which flow eastwards, like Godavari, here is the Godavari river, here is the Mahanadi river, Kaveri and Krishna river. And you can see deltas formation of deltas. But the Narmada river, the Tapti river, both flow westward and fall into the Arabian Sea. They don't have any delta. You can clearly see they don't have any delta. Then
Next thing is, this part is known as Konkan, then this part is known as Malabar coast, this part is known as Northern Sirkars, and then this part is known as the Coromandel coast. So we are going back again to the Western and Eastern Ghats. See children, it's very necessary to read the text, read the lesson very nicely, 2 or 3 times at least. Next, you see the Western and Eastern Ghats. Western Ghats lie to the western side of the Deccan Plateau, parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed by passes only. While the Eastern Ghats, they are higher. Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. एवरेज एलिवेशन मतलब ऊंचाई 900 to 1600 मीटर्स है और ईस्टर्न घाट्स की 600 मीटर्स है. ईस्टर्न घाट्स जो हैं महानदी रिवर से नीलगिरी माउंटेन्स साउथ तक होते हैं. ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर और बीच बीच में इसमें से रिवर ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में. वाइल द वेस्टर्न घाट्स, दे इनकी वजह से ओरोग्राफिक रेन होती है और इसीलिए खूब पानी बरसता है. मुंबई, पुणे. Western Ghats are known by local names like Sahyadri. नॉर्दर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट्स जो हैं कम ऊंचे हैं और साउथ में जाते जाते ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, इंक्रीज होती जाती है उनकी हाइट. हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड अन्नाईमुड़ई एंड डोडा बेटा. महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स. ये छोटे छोटे वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस बीच बीच में से आ रहे हैं. शेवरॉय हिल्स एंड जवाड़ी हिल्स कहाँ पे हैं? साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. उडगमंडलम एक फेमस हिल स्टेशन है, पॉपुलरली नोन एज ऊटी और कोडाईकनाल एंड द कोडाईकनाल. वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो क्या है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ये एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप. अरावली हिल्स जो हैं इसके वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पे पाए जाते हैं ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो. And now the great Indian desert. इंडियन डेजर्ट मतलब हमारा जो रेगिस्तान है. इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. यहाँ भी कहीं कहीं सैंड ड्यून्स भी दिखाई देते हैं बिल्कुल वेस्टर्न मार्जिन की तरफ, जरा पाकिस्तान के पास वाले एरिया में. एंड इट हैज़ यहाँ पे बहुत लो रेनफॉल होती है, बिलो 150 mm पर ईयर. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट मतलब एरिड मतलब ड्राई क्लाइमेट, और लो वेजिटेशन मतलब यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, कांटीले होते हैं. यहाँ पे इनफ वाटर नहीं है, केवल एक यहाँ लार्ज रिवर है लूनी. देन यू कैन सी बर्चन्स मतलब क्रेसेंट शेप ड्यून्स वेरी prominent near the Indo-Pakistan boundary, especially in Jaisalmer. Then last topic, coastal plains का. The 2 topics left. One is coastal plains and then second is the island. तो जो हमारे coastal plains हैं, peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east. Western coast जो है वो किसके बीच में है? वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी के बीच में है. नैरो प्लेन है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस जो अभी हमने बताया था. नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण. द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन while the southern coast is known as Malabar. Next,
The plains along the Bay of Bengal are wide. Northern part is referred to as Northern Sircar, southern part Coromandel coast. बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स इसमें फ्लो करती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। चिल्का लेक यहाँ पे पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। लास्ट टॉपिक, आइलैंड्स। आइलैंड्स दो हैं यहाँ पे, एक लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और lying close to the Malabar coast of Kerala. This is a group of islands composed of small coral islands. Earlier they were known as Lakkadweep, Minicoy and Amini. In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometers. कावारत्ती आइलैंड यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं और यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तरह तरह के। पिट्टी आइलैंड ये में यहाँ बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में क्या देखोगे, चेन ऑफ आइलैंड्स है from north to south. These are known as Andaman and Nicobar Islands. ये थोड़े बड़े हैं, bigger in size हैं and numerous and scattered. This part also has diversity of flora and fauna. These islands lie close to the equator और यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और thick forest cover है। So you can see ये जो डिफरेंट हमारे डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं, सभी के अपने अपने यूनिक फीचर्स हैं। माउंटेन्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री, दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस। फिर तीसरा कौन सा है, तो एक ये माउंटेन्स हो गए, दूसरे हो गए प्लेन्स, तीसरा हो गया प्लेटो, ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं और हमारे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म होने में बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे क्या आ गए, कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स, जिसमें फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है। इस तरह से इंडिया के पास तरह तरह के जो फिज़िकल फीचर्स हैं उससे इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट है। सो चिल्ड्रन, वी हैव completed the lesson.